These 3 o'clock is already 3:02. सबों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कृपया अपना माइक को म्यूट पे रखें। सबों से रिक्वेस्ट है क्योंकि ये YouTube पे लाइव स्ट्रीम होता है, तो अगर आप बात करते हैं तो वो वाला आवाज भी YouTube में जाता है। तो सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपना माइक को म्यूट में रखें। आप लोग सब अपना माइक म्यूट कर दें। Didi, we are ready to go. We start with the rosary. Yeah, we can start with the Divine Mercy Chaplet. Yeah, we'll start. Brother Rocky, you can start with the chaplet. Okay. Brother Rocky? Yes, sister. Start with the chaplet. You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. From there he shall come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. इस पहले भेद में हम अपनी कलिसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी बुरी शक्तियों से और दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे अपनी कलिसिया को, और अपनी कलिसिया को और मजबूती प्रदान करने के लिए और ईश्वर के वचन को और अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम कलिसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। For the sake of his sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us and on the whole for the world. sake of his sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us and on the whole for the world. sake of his sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us and on the for whole the world. sake of his sorrowful passion,
Abba, Father, have mercy on us and on the For whole the world. sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. हे शाश्वत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर एवं रक्त, आत्मा और ईश्वरता आपको चढ़ाते हैं। इस दूसरे भेद में ये प्रार्थना करेंगे, जिन जिन परिवारों में प्यार नहीं है, मिलनसारिता नहीं है, उन सब परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपना प्यार का आत्मा उनमें भेजिए और जो भी टूटे हुए परिवार हैं उन्हें जोड़ के आप अपने पवित्र आत्मा से सब परिवारों में भर दीजिए। हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. इस तीसरे भेद में हम इस वर्तमान समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो भी लोग शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हैं, परेशान हैं, उन्हें आप अपना पवित्र आत्मा भेजकर उन्हें अब आत्मा से उन्हें शांति प्रदान कीजिए। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। For the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the for the sake of his sorrowful passion, Abba, Father, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. इस चौथे भेद में हम सभी विश्वासियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अब पिता, आप उनके अंदर जो भी विश्वास है उन्हें उससे बढ़ाइए और परीक्षा के समय में हमारा विश्वास खरा उतरे। उसके लिए आप अपना पवित्र आत्मा भेजकर हमारे हृदय को और मन को संतुष्ट कीजिए। जो भी विश्वासी जो कमजोर हैं, जो विश्वास में थोड़े कमजोर हैं, उनका विश्वास बढ़ाइए ताकि वे परीक्षा में खरे उतरे और इस समय के जो भी अंधकार की शक्तियां हैं उनसे वे लड़ पाएं। उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा
हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर एवं रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता आपको चढ़ाते हैं। इस भेद में हम अपने अपने निजी मतलबों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना कर सकते हैं और माता पिता से हम उनकी दया मांग सकते हैं। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हे पावन ईश्वर,
हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। एक पल के लिए बस स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी उपस्थिति, हालेलुया हालेलुया। Oh Lord, your powerful presence, Lord, your anointed presence, Lord. Lord, we have come and gathered in your name, Lord. Lord, your word said, Lord, you promised, Lord, that you will be with us. Your name, Lord. Lord, it is not distance that can keep us apart, Lord. Your spirit can unite us, Lord. We are united in your spirit, oh Lord. Oh Lord, we need more of you, Lord. We need more of you. प्रभु, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए। आपके बगैर सब कुछ व्यर्थ है। आपके प्यार के बगैर सब कुछ बंजर सा है, प्रभु। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 में परमेश्वर ने वादा किया, The promise of God, अगर तुम मेरी आराधना करोगे, if you dare to worship me with your entire being, I will come and bless you. I will take away every sickness, every part of darkness from you. And I will bless your water. I will bless your kneading trough. आराधना, परमेश्वर की आराधना में सारे आशीष है। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा में यही कहा, तुम अपने ईश्वर की आराधना करोगे। जब जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनके आत्मा का अभिषेक हम पर उतर आता है। आत्मा के द्वारा वो हमारी जिंदगी पर अधिकार लेते हैं और अपनी कृपा, उनका स्वर्गीय जीवन, उनकी स्वर्गीय आशीष वो हम पर उतर आते हैं। आराधना आराधना करता हूँ मैं तेरी आराधना। Lord, truly we want to worship you. Oh Jesus, we want to worship you in spirit and in truth. God is spirit. परमेश्वर आत्मा है और इसलिए अगर हमें उनकी आराधना करनी है तो यकीनन हमें आत्मा में आराधना करनी है। Jesus is truth. यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन में, इसी सच्चाई में उनकी आराधना करनी है। जहां भी आप हैं, आंखें बंद करें और इन भौतिक आंखों से नहीं बल्कि आत्मा की आंखों से अपने ईश्वर के सानिध्य को जानिए, जो आपके कितने करीब है। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें।
यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के आराधना करें, हाथों को उठा के आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें। टिकेगा हर एक ज़बान से करेगी यीशु प्रभु है। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, समस्त संसार में हमारे परमेश्वर समान और कोई नहीं, जो वाकई में हमारी आराधना के योग्य है। जीसस, जीसस, माय लॉर्ड, I worship you. घुटनों पे आके हम आराधना करें, घुटनों पे आके हम आराधना करें, उसकी आंगन में आराधना करें। जहाँ पर भी है दोनों हाथ उठाइए, आत्मा में उसकी आराधना करें। Oh, great blessings will you receive when you worship him. ज़बानी तौर से नहीं बल्कि आत्मा में उसकी आराधना करें। आपकी आत्मा उसकी आत्मा की ओर, उसकी पवित्र आत्मा की ओर समर्पित करें। Let the Holy Spirit take control. Let him come and dwell in your spirit. And truly you will become temples of the living God. उसकी पवित्र आत्मा के निवास स्थान। यीशु ने कहा, तुम मेरे वचनों पर बने रहोगे, मेरी शिक्षा का पालन करोगे और मैं और मेरे पिता तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हारे अंदर हम निवास करेंगे। Yes, Lord. You who abide in the highest heavens, Lord, you come and abide in me, Lord. I truly want to be your holy temple. आत्मा से भर के हम आराधना करें, आत्मा से भर के हम आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, hallelujah, Praise the Lord. Greeting of God in the name of Jesus. सबों को प्रभु यीशु के बड़े ही प्यारे संतानें हैं आप, अब्बा पिता के प्यारे विश्वासी गण हैं आप, और आप इस यात्रा में चल रहे हैं साथ में। यकीनन परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तैयार करके रखा है। जान लीजिए, when we are doing this, we are receiving a lot. Whether you realize it or not, you are receiving. क्योंकि जो भी प्रभु के वचनों के प्रति ईमानदार रहता है, वचनों के प्रति अपनी लालसा दिखाता है, प्यास दिखाता है, प्रभु ने वचन दिया है, उसको मैं दूंगा। So whether you know it or not, ये दिनों में या तो आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके लिए महान कार्य करेगा, द्वार खोलेगा। आप यकीनन प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु आपका मार्गदर्शन करेगा, प्रभु आपके कदमों को सुदृढ़ बनाएगा। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग जो 4 अध्याय हम बीते समय में मनन किए हैं, उस पर आप थोड़ा वापस मनन किए या नहीं किए हैं। जो वचन, क्योंकि जो वचन सुने उस पर वापस मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कांटेक्ट में ही अब आगे हम बढ़ेंगे। तो अब हम उत्पत्ति ग्रंथ आज 5 से 10 हमने बताया था आपको पढ़ने के लिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 लेते हैं। उसमें बहुत कुछ, यानी कुछ 1-2 बातें हम आपको जरूर बतलाएंगे जो गौर करने योग्य है या जिस पर हमें थोड़ा मनन करने की जरूरत है। यहाँ पर बताया जाता है कि सेत, जो आदम का दूसरा यानी कैन के हाबिल के मृत्यु के बाद उन्होंने वापस अपने पत्नी हेवा के साथ संबंध जोड़ा और एक पुत्र पैदा हुआ है, वो है सेत, और उसकी वंशावली बतलाई गई है। आगे चलकर हम अगर उसमें पढ़ेंगे तो 5:24 में एक व्यक्ति पर थोड़ा गौर करना जरूरी है, क्योंकि लिखा है, हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था और वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। इनोक, जिसको हम इनोक कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हनोक कहते हैं, लिखा है ही वॉक्ड विद गॉड, वो प्रभु के साथ चलता था। बाइबल में केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई है। They did not die. वो जिंदा थे और प्रभु ने उठाकर लेकर गए। और ऐसे ही शरीर के रूप में, शरीर की अवस्था में उनको, नहीं तो हर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके बाद उनको लिया जाता है, पर 2 ही व्यक्ति है, उसमें से एक इनोक है, हनोक है, और दूसरे हैं एलिया। हम आगे पढ़ेंगे एलिया नबी के बारे में। तो ये दोनों व्यक्ति क्यों इस तरीके से उनको उठा लेकर गए? अगर आप ये सोच रहे हैं कि माता मरियम कहाँ है, तो माता मरियम की मृत्यु होने के बाद उनको शरीर, देह और आत्मा में लिया गया है, यानी उनका देह सड़ा नहीं है पर लेकर गए हैं। पर ये दोनों व्यक्तियों को तो जिंदा अवस्था में लेकर गए। उनको क्या लिखा है? ईश्वर उन्हें उठा ले गया। क्यों?
कारण एक ही है, वो प्रभु के साथ चलते थे। प्रभु के साथ चलते थे का मतलब है दे वॉक विद गॉड। उसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे थे। हर कदम में वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर जैसा चाहते थे वैसा जीवन बिताते थे। See, when you walk with God here in life, obviously God grants you total company with him. He doesn't want you to be remaining in this world. He will come to lift you up. और यही बात आगे चलकर भी हम पढ़ते हैं कि जब यीशु का पुनरागमन होगा, जब यीशु वापस आएंगे, अभी जिसको हम परोसिया कहते हैं, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, वहां पर भी लिखा है यीशु आएंगे और हमें उठा कर लेकर जाएंगे। किसको उठा कर लेकर जाएंगे? जो प्रभु के साथ चले हैं, जो प्रभु के साथ चले। प्रभु के साथ चलने का मतलब क्या है? जो उसके वचनों के अनुसार चले। कौन? जो उसका सच्चा शिष्य बना। उनका सच्चा शिष्य कौन है? John 8:32. John 8:32. Very important word. Note it down. योहन 8:32. Very very important word. क्या कहा गया है? जो मेरे वचनों में बना रहेगा, the one who remains in my word, he is truly my disciple. जो मेरे वचनों में बना रहेगा वो मेरा सच्चा शिष्य होगा। 31 ओके 31 है तो सॉरी। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे। शिक्षा पर दृढ़ रहने का मतलब है उनके, इंग्लिश में लिखा है the one who remains in my word, the one who walks continuously according to my word, वो सचमुच में मेरा शिष्य सिद्ध होगा। योहन के सुसमाचार की खासियत है, यहाँ पर कभी भी प्रेरित ये शब्द ने उपयोग किया है। योहन ने कभी भी प्रेरित शब्द उपयोग किया ही नहीं है। दूसरे सारे तीनों सुसमाचार में, मार्क, लूकस और मती में अपोस्टल कहा जाता है, बट John doesn't say apostle. John only knows I am a disciple. मैं शिष्य, वो मेरे गुरु है। और वो हर बार अपने आप को भी किस तरीके से संबोधित करते हैं? वो शिष्य जिसे यीशु ने चाहा, वो शिष्य जो यीशु जिसे पसंद करते थे। ये ओनली नो, उन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिया। John only said the disciple whom Jesus loved. यानी उनकी पहचान क्या है? मैं शिष्य हूँ और मेरा गुरु मुझे प्यार करता है, ये उसकी पहचान है। तो वो शिष्य, वो यानी इनोक की खासियत क्या थी कि वो परमेश्वर के साथ चले, इस कारण से परमेश्वर ने उठा कर लेकर गए। तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा और जरूर, मैं यकीन से कहती हूँ, 1-2 सवाल तो जरूर उठे होंगे। किसी ने मुझे 1-2 सवाल भेजे भी थे, दीदी इसका मतलब क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। तो उस पर हम थोड़ा मनन करेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन 1-2-3 लिखा है कि जब मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगी और उसके पुत्रियां हुई, तब ईश पुत्रों ने देखा कि मानव पुत्रियां सुंदर है और उन्होंने उनमें जिनको पसंद किया उन्हें अपनी पत्नी बनाया। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा, क्योंकि यह मरणशील है। वह अब उसका जीवन काल 120 वर्ष का होगा। उस समय तथा उसके बाद भी जब ईश पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते थे, तब पृथ्वी पर नपीलीम भी निवास करते थे। तो अभी इन पर हम समझेंगे कौन है ये ईश पुत्र, कौन है, और ये मनुष्य की, मानव की पुत्रियां कौन है। ऐसा कहा जाता है, हमारे जो धर्मशास्त्री है, आवर थियोलॉजियंस, उन्होंने क्या कहा है, सेत का जो वंशज है वो अदम और हेवा के
के का एक के क्या बोलते हैं ना, उसकी फ्रॉम द गुडनेस और फ्रॉम द राइचियसनेस उनकी पैदाइशी हुई है। सेत का वंशज ईश्वर पुत्र कहा जाता है। कारण यह है क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 4 में, अध्याय 4 का आखिर का वचन, अध्याय 4 का आखिर का वचन, किसी का माइक म्यूट, अध्याय 4 का आखिर का वचन में उसने लिखा है, उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। उस समय से प्रभु का नाम, सेत का भी पुत्र हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा और उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। यानी सेत का जो वंशज था वो परमेश्वर का नाम लेकर वो अपने आप को धार्मिकता का जीवन जी रहे थे। यानी वो सारे ईश्वर पुत्र है। और तो ये मानव की पुत्रियां कौन है? मानव की पुत्रियां कहा जाता है वो काइन की वंशावली है। काइन, उसने अपने भैया का खून किया और वो भले ही परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, पर परमेश्वर ने उसकी जिंदगी पर भी एक उसको श्राप तो लागू हुआ। वो खूनी थे, उसने उसके भाई का खून पुकारा था। तो खूनी का जो वंशज था, यानी पाप का जो वंशज आया, वो सारी मानव पुत्रियां। और इसका मतलब क्या हुआ? धर्मी वंशज और अधर्मी वंशज अब आपस में मेल मिलाप कर रहे, और उनकी संतान वो सारी पाप का वंशज निकला। परमेश्वर कदापि नहीं चाहते, God never wants the righteous to mingle with the unrighteous। हमें इसलिए तो हम ईसाई परिवारों में बहुत इस पर जोर दिया जाता है कि हम दूसरे जाति के लोग, इसका मतलब ये है कि दूसरे जाति के लोग अछूत है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम दुनियादारी के लोगों के साथ हम संपर्क नहीं रखेंगे। कुरिन्थियों के नाम पत्र में, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का जो पत्र है उसमें लिखा है, अंधकार को ज्योति से क्या मतलब? कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का संत पौलुस का दूसरा पत्र है, अध्याय 6। उसमें लिखा है 6:14 में, आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में मत जूते। धार्मिकता का अधर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध? धार्मिकता का अधर्म से क्या संबंध है? ज्योति का अंधकार से क्या संबंध है? मसीह को बैलियर के से क्या संगति? विश्वासी की अविश्वासी के साथ क्या सहभागिता? और ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता? कहने का तात्पर्य ये है, what God is trying to say is, we have to set ourselves apart. We are set apart by God. परमेश्वर ने हमको अलग से चुना है, तो हमें जानना है हम संसार के तौर तरीकों के अनुसार नहीं चल सकते, उनके साथ हमारा मेल मिलाप नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों से एकदम अभिन्न हो जाएंगे, हमें दुनिया में नहीं जीना है। प्रभु यीशु ने कहा है तुम्हें संसार में होगे, पर मैंने तुम्हें संसार से अलग चुना है। इसलिए जब यीशु पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, संसार, द वर्ल्ड कैन नॉट सी हिम। पवित्र आत्मा, he is the spirit of truth and the world cannot see him, but you will see him because he is in you. The world cannot see him का मतलब क्या है? यानी जो दुनियादारी के अनुसार चलते हैं, जिनको भोग विलास में, जिनको सांसारिकता में, जिसको व्यभिचार का जीवन, जिसको पाप के जीवन में ही मजा है, उनके
उनको पवित्र आत्मा से they will not know him, वो पवित्र आत्मा को नहीं जानेंगे। हालेलुया। तो ये उनकी जो वंशज है, उनको क्या नाम दिया है? वो वंशज, उसको जो 6:3 में लिखा है नफिलिम, they are called nephilim, okay? इसका मतलब है they were like giants in body। 3 में बता, सॉरी 4 उस समय तथा उसके बाद भी जब ईश पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते थे, तब पृथ्वी पर नपिलिम भी निवास करते थे। तो ये नपिलिम जो वंशज है, तो ये नपिलिम ऐसे कहा जाता है कि देवर वो एकदम महाकाय भीमकाय शरीर के लोग थे, नपिलिम वंशज। और देवर वो अपने शरीर के बारे में ही सोचते, भोग विलास, अपने शरीर को बढ़ाने में सोचते हैं, यानी सांसारिक और शारीरिक प्लेजर्स, शारीरिक सुख भोगने में ही उनकी रुचि है। तो ये जब होने लगा, परमेश्वर ने जब देखा कि और पृथ्वी पर बहुत आबादी फैल रही है, पर ये सारी पापमय वंशज है। जब परमेश्वर देखा पाप इतना बढ़ गया है, इसे हम आगे पढ़ेंगे 6:5। अब यहाँ से सब शुरू होता है, अब यहाँ से बहुत ध्यान रखना है, ये वचनों को ध्यान से पढ़ना है। 6:5 में प्रभु ने देखा, गॉड सॉ व्हाट, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, दुष्टता बहुत, evil is widespread, एंड और उसके मन में निरंतर बुरे, ये शब्द देखिए, निरंतर, यानी एक पल के लिए भी अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, एक पल के भी कोई सन्मार्ग पर, या तो कोई यानी जो परमेश्वर को धार्मिक विचार नहीं है। और हमारा मन, हमारे विचार ही उद्गम स्थान है जहां से यानी पुण्य बढ़ सकता है, या तो पुण्य बढ़ेगा या तो पाप बढ़ेगा। अगर निरंतर उद्गम स्थान विचार बुरे ही है और वो बुराई बढ़ रही है, तो फिर अच्छाई तो आ ही नहीं सकती। परमेश्वर ने ये देखा कि ये अब यहाँ अच्छाई है ही नहीं, अच्छाई सारी समाप्त हो गई है, सब कुछ में सब बुराई दिख रहा है। So God saw the wickedness यानी कपटी है, दुष्ट है, क्रूर है। The wickedness of humankind was so great. It was great in the sense it's multiplied, ये कई गुना बढ़ रहा है। And in the earth that every, in English में लिखा है, every inclination of the thoughts of their hearts, हर एक विचार उनका बुराई की ओर ही है, परमेश्वर की ओर वो देख ही नहीं रहे। वो जो धार्मिकता थी, जो सेठ से आ रही थी, अब वो सारी किसके साथ? क्योंकि मानव पुत्रियों के साथ, पाप की वंशज के साथ जुड़ने के कारण अब उनका परमेश्वर की ओर कोई भी झुकाव है ही नहीं। तब जाकर प्रभु ने देखा ये तो पाप बढ़े जा रहा है। अब परमेश्वर हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक है, वो नहीं चाहता पाप बढ़े। नेवर, गॉड नेवर वांट्स सिन टू इंक्रीज। और देख रहे पाप बढ़ रहा है। तो अब हमें समझना ये भी है कि हमारा जो उद्गम स्थान है, द माइंड, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर माइंड शुड बी क्लेंस्ड। रोज मुझे सुनने वाले सभी परमेश्वर की संतानों, प्रभु से रोज प्रार्थना करनी अनिवार्य है, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर। प्रभु मेरे, बोलिए सभी लोग बोलिए, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे विचारों को पवित्र कर। ये करना बहुत जरूरी है, अहम है, क्योंकि वहीं से सारी सब कुछ अच्छा आ सकता है। तो अगर हम देखें, if you read Jeremiah chapter 17 verses 9, जेरेमाया, इर्मिया का ग्रंथ, अध्याय 17 वचन 9 अगर आप देखेंगे तो उसमें वचन ऐसा है, लिखा है,
यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 9, The heart of man is the most devious and the wicked thing. मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी था कौन ले सकता है। प्रभु आखिर में क्या देख रहा है, हमारी मन और हमारी आत्मा को, और ये सबसे अधिक कपटी है, अविश्वसनीय है। It is very wicked, it is very evil. So परमेश्वर ने जब ये देखा कि मनुष्य का मन पाप से बढ़ रहा है, और ये समझ लेना, आज हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं कोई नहीं देख पाता। क्या आपकी पति को पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है? पता चलता है? नहीं। आपके परी पुरोहित को पता चलेगा, आपके पड़ोसी को पता चलेगा, आपके बच्चों को पता चलेगा? नहीं। पर आपके मन में जो चल रहा है ना, वो जैसे कि स्वर्ग में लाउड स्पीकर से बताया जा रहा है, इसके मन में ये सब चल रहा है। लाउड स्पीकर से वो आप मन ही मन में कहते होंगे, पर लाउड स्पीकर से स्वर्ग में घोषित किया जा रहा है, इसके मन में ये विचार है। जब प्रभु यीशु 4 व्यक्ति एक अर्धांग रोगी को लेकर आए और यीशु ने उसके पाप को क्षमा किया, तो लोग सोच रहे, ये फरीसी सोच रहे, ये कौन होता है पापों को क्षमा देने वाला। लिखा है यीशु ने उनके मन के जब यीशु एक फरीसी सीमोन के घर जाते हैं और वहां पर एक पापिनी स्त्री उनके पांव धोती है, तो सीमोन फरीसी मन में क्या सोच रहा है कि अरे ये तो अगर ये नबी होते, अगर ये वाकई में भविष्य वक्ता होते, इफ ही वाज अ प्रॉफिट, ही वुड हैव नोन कैसी औरत उसके पांव को छू रही है। अब यीशु ने तो दोनों के विचारों को जान लिया, यीशु ने फरीसी के भी विचारों को जान लिया और पापिनी स्त्री के मन के विचार को भी जान लिया। ये तो बेचारी पश्चाताप करके आ रही है और ये फरीसी उस पर दोष लगा रहा है, आलोचना कर रहा है। तो जीसस अंडरस्टैंड्स आवर थॉट्स, so we have to be important. What we are thinking is very important. You have to think what you are thinking. आपको इस पर विचार करना है, आप क्या विचार करते हो। लिखिए, आपको इस पर विचार करना है कि आप क्या विचार करते हो। You have to think what you are thinking, because that is what God is seeing. That is what God is seeing. वही विचार लाउड स्पीकर से स्वर्ग में घोषित हो रहे, हाँ, स्वर्ग में वो सब घोषित हो रहे। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो कमरे में जाओ, कमरे में जाकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में, जो गुप्त में रहता है, उससे तुम प्रार्थना करो। क्योंकि तुम अगर ढोंगियों की तरह केवल दिखावा करने के लिए अगर तुम बीच में खड़े रहकर अगर प्रार्थना करते हो, तो तुम्हें तो इनाम मिल गया, क्योंकि तुम्हारी नियत क्या है, तुम्हें दिखावा करना है। परमेश्वर ने प्रार्थना को नहीं देखा, परमेश्वर ने किसको देखा है? नियत को देखा। प्रभु ने इरादे को देखा है, प्रभु ने प्रार्थना को नहीं देखा है। So it's important that what we know in our mind. Okay. तो प्रभु ने कुछ बातें देखी, पाप कहाँ बढ़ रहा है। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही, और वो आबादी कैसी है, वो सारा अश्लील है। They are thinking all perversion, sensual, व्यभिचार, सारा it's more about वासना से प्रेरित है। So it's all sensual, sexual, सारी बातें बढ़ रही है। थर्ड, डेमोनियक एक्टिविटी, बहुत ही दुष्ट बातें बढ़ने लगी। और परमेश्वर ने देखा कि कांस्टेंट, हर निरंतर बुराई बढ़ रही है। इसका और आगे 6:11 में लिखा है करप्शन। जेनेसिस 6:11 में लिखा है करप्शन एंड वायलेंस इंक्रीज। वहां पर क्या बढ़ गया है? करप्शन एंड वायलेंस। 6:11 में लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। अब संसार ईश्वर की दृष्टि में भ्रष्टाचारी बन गया था और हिंसा से परिपूर्ण हो गया। हिंसा बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, यानी सब तरीके से बुराई बढ़ रही है। जब सब तरीके से बुराई बढ़ी, तब जाकर पता है यीशु ने भी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए परमेश्वर 6:6 में, ये सारे कारणों से 6:6 में लिखा है, परमेश्वर को दुख
दुख हुआ. God felt sorry. परमेश्वर को दुख किस बात का हुआ कि मैंने मनुष्य को पैदा किया. God was repenting. Oh my God, why did I create them first of all? क्या परमेश्वर हमारे लिए बाइबल में ऐसे कुछ बातें हैं या कुछ क्षण हैं जहां पर परमेश्वर को भी दुख होता है. Why I did this? क्या मेरा जीवन ऐसा है? मुझे देखना है. प्रभु को दुख हुआ कि यूदास पैदा ना हुआ होता तो अच्छा होता. दुख हुआ. ये क्यों? Woe to the man who's betraying the son of man. Woe to him. धिक्कारे उसे. क्या प्रभु मुझे देखकर ऐसा कह रहा है कि उसको दुख हो रहा है? क्या मैं वाकई में, फिर हम देखते हैं साउल के जिंदगी में, साउल जो पहला राजा था, तो जब उसको राजा नियुक्त करने के बाद जब वो दुराज्ञाकारी बना है तो लिखा है गॉड वाज ग्रीव्ड. प्रभु को दुख हुआ, मैंने इसको क्यों राजा बनाया. क्या प्रभु आज दुखी है कि उसने आपको पिता क्यों बनाया? पिता बनाने का आपने अपना फर्ज नहीं निभाया, आपने अपना दायित्व नहीं निभाया, आपने अपने बच्चों को बराबर से या उसका लालन पोषण नहीं किया, आप एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाए. क्या प्रभु को दुख हो रहा है? We have to see. So it is an introspection. आज अपने आप को देखना, प्रभु ने मुझे जो जो दिया है या जो जो बनाया है, क्या मैं वाकई में ईमानदार बना रहा हूं? तो जरूर पश्चाताप करना है. आज प्रभु दोष नहीं लगाते क्योंकि ये सारा पुराना विधान है. अब नए विधान में यीशु सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, पर हमें समझना तो जरूर है ना. जरूर है, क्योंकि ये सारी बातें पूर्ण होती है यीशु मसीह. So God doesn't want evil to thrive, and that's why God out of compassion, परमेश्वर दया से प्रेरित होकर अब क्या फैसला लिए? मैं सारी बुराई को मिटा दूंगा. अब ये बुराई को बढ़ने नहीं दूंगा. इसलिए परमेश्वर ने फैसला लिया. कभी भी ना सोचना, और ये भी जान लीजिए, ये परमेश्वर को ये फैसला क्यों लेना पड़ा. ये मत सोचना प्रभु कठोर है, प्रभु दंड दे रहा है, प्रभु सजा दे रहा है. नहीं, प्रभु सजा नहीं दे रहा है. उनका पाप इतना बढ़ गया कि अब पाप का नतीजा आ रहा है. क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है, तो न्याय तो उसको दिखाना ही है. और वो न्याय कैसे दिखाएंगे? दुष्ट को, जो पाप है उसको तो खत्म करना ही करना है. इसलिए परमेश्वर प्रेम से प्रेरित होकर ही, करुणा से प्रेरित, तो ये इतना पाप बढ़ जाता कि ये यानी सीमा से बाहर जा रहा था सब कुछ. That's why God decided, now I have to see to it that this is all destroyed. अब पर वहां पर देखिए ये सारी बुराई में परमेश्वर ने कुछ अच्छाई देखी. क्या अच्छाई देखी? उत्पत्ति 6:8 प्रभु ने देखा कि नूह एक ऐसा व्यक्ति है. 6:8 में क्या लिखा है? नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई. उसको प्रभु की कृपा दृष्टि क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि नूह का वृत्तांत इस प्रकार है कि नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था. वो ईश्वर के मार्ग पर चलता था. So what is the description about Noah? That he was a righteous man. He was a man who walked with God. तो ये कैसे हुआ? यानी एक कमल जैसे बुराई में, एक कादव में खिल रहा है, वैसे ही नूह प्रभु के साथ, यानी इस बुराई की अवस्था में भी वो परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा. इसलिए इससे मुझे, मैं जब इस पर वर्णन कर रही थी तो मुझे एक अंदर से एक ऐसी बात आई, हमारे जिंदगी में सब कुछ शायद सब कुछ बुरा होगा, पर इस बुराई में एक अच्छाई भी होगी ना, तो प्रभु उसी अच्छाई को देखकर हमारे अंदर हमें बचा लेंगे. हालेलुया. मुझे ऐसा आया कि how much ever evil there might be in our lives, but if there is that one goodness in our life, no, ये सारी बुरी जाति में प्रभु ने देखा एक बंदा तो है, और उस एक बंदे के द्वारा उसने सब कुछ किया है. तो हमारे जिंदगी में भी शायद सब कुछ बुरा होगा, पर उस बुराई में भी एक अच्छाई होगी, तो वहां से प्रभु कार्य शुरू करेगा. पता है आज संत अगस्तिन का पर्व है ना? तो संत अगस्तिन की जिंदगी में तो सब कुछ बुरा ही था, पर उसकी जिंदगी में क्या अच्छाई थी पता है? उसकी माँ
वो एक अच्छाई में सारी अच्छाई आ गई। तो इवन इन योर फैमिली, और ये भी गौर करने वाली बात है, नूह का पूरा परिवार बच गया। क्यों? नूह धार्मिक था। एक बंदा धार्मिक होने के कारण पूरे परिवार को आशीष मिल गया। मोनिका, एक परिवार में एक व्यक्ति धार्मिक थी, उसके पति और उसके बेटे दोनों को आशीष मिला है। दोनों यानी मुक्ति भी पाए हैं और उनका बेटा तो संत भी बना है। तो नूह के दृष्टांत से मैं यही जानती हूँ, परिवार में सारी बुराई फैलाई है, पर एक बंदा भी अगर प्रभु में है ना, तो प्रभु उसके द्वारा ही परिवार को बचा लेगा। बोलिए, एक बंदा मैं हूं या मैं बनूंगा। हाँ, वो एक बंदा है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वहां पर परमेश्वर ने 6:13 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी मन की बातें प्रकट की है। किसको? नूह को प्रकट की। 6:13 में लिखा है, God reveals his mind to Noah. He tells what is it that I'm going to do. मैं क्या करने वाला हूं। 6:13 में लिखा है, ईश्वर ने नूह से कहा, क्या कहा है कि ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूंगा। परमेश्वर ने प्रकट किया। क्यों? आमोस का ग्रंथ अध्याय, आमोस नबी का ग्रंथ, परमेश्वर अपने दासों को जरूर प्रकट करेंगे। अपने जो सेवक है या उनके जो मित्र हैं, अपने नबियों को जरूर सूचित करेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। तो परमेश्वर ने अपने सेवकों को सूचना दिए बगैर क्या कुछ करेगा? नहीं, वो जरूर करेगा। इसे प्रभु ने सोदोम और गोमोरा के बारे में भी किसको सूचित किया? इब्राहिम को सूचित किया। तो इसे परमेश्वर ने इसको सूचित किया है कि ये होने वाला है। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि पाप का ये ना सोचना कि प्रभु दंड दे रहा है, बल्कि पाप का नतीजा उन पर आ रहा है। रोमियो का पत्र 6:23, रोमियो का पत्र 6:23, उसमें लिखा है, पाप का वेतन है मृत्यु। पाप का वेतन है मृत्यु। अब तक समझ लीजिए, ये मृत्यु होनी जरूरी है, क्योंकि अब तक यीशु नहीं आए। यीशु के बाद ये सारी मृत्यु वो अपने ऊपर ले लेते, पर यीशु के आने के पहले तो मृत्यु आएगी, जरूर आएगी। इसे पाप का वेतन मृत्यु अब संसार को भुगतना पड़ रहा है। ओके, सो 6:14 से, अध्याय 6 वचन 14 से 16, उसमें प्रभु ने वहां पर उनको निर्देश दिया। किसको निर्देश दिया है? नूह को निर्देश दिया कि उसे क्या करना है, उसे अपने लिए एक जहाज को बनाना है। हाँ, और अब यानी प्रभु ने उसको कहा, इट इज रिटन, मेक योरसेल्फ एन आर्क, मेक योरसेल्फ, गॉड इज इंस्ट्रक्टिंग नोआ, यू शैल मेक योरसेल्फ एन आर्क। यानी ये बातें नोआ को खुद करनी होगी। He cannot tell someone else. ये प्रभु ने खुद उसको काम सौंपा है। 6:14 में लिखा है, तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो, तुम खुद बनाना है। And so Noah started working on this and God gave instructions. परमेश्वर ने पूरी यानी वहां निर्देश दिए क्या करना है, कितना हाथ लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आने वाले दिनों में वो पोत में परमेश्वर क्या करने वाले, प्रभु उसको बतलाने वाले। तो Noah started working and प्रभु ने 17 में बतलाया है कि ये तुम करो, और तुम ये वो क्या करने वाले हैं कि वो सब कुछ की मृत्यु होने वाली है। अब नोआ को जब ये बताया गया, क्या नोआ मन में थोड़ा विचलित नहीं हुआ होगा कि ये सारा संसार, दिस एंटायर वर्ल्ड, ये सारे लोग, जानवर, पशु पक्षी, सब कुछ खत्म होने वाला? खौफ हो गया होगा उसको, मन में भय आ गया होगा, क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या होगा। आप सोचो, अगर आपको प्रभु बताता है
ये कोरोना में सब कुछ खत्म होने वाला है, केवल आप जिंदा रहने वाले हो, आप पर क्या बीतेगी? मैं तो डर के मारे, मुझे तो, मैं सोच उसके भयभीत हो जाऊंगी, क्या होगा नहीं होगा। आपको मन में डर नहीं आएगा? पता नहीं, मुझे तो आएगा कि माय गॉड, ये जो आज मैं देख रही हूँ, ये सारा संसार समाप्त होने वाला है और मैं अकेली बचने वाली हूँ। तो मन में कई विचार आए होंगे, पर और वो ये भी जान पाए होंगे कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, प्रभु का न्याय, उसके अंदर एक भय पैदा हुआ होगा जरूर। आई फील फॉर श्योर। पर प्रभु ने उसको ये भी बताया कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा। तो उसके अंदर एक बात ये भी आई होगी, चलो परमेश्वर मुझ पर दया तो दिखा रहा है, तो उसको प्रभु के प्रति एक कृतज्ञता भी उत्पन्न हुई होगी। You would have been a great gratitude. God, you have been so kind that despite of you are destroying everyone, Lord, you are still going to save me. Lord, it is truly grace. ये परमेश्वर आपकी दया है। इससे अंदर से एक ग्रैटिट्यूड की भावना, एक धन्यवाद की भावना भी प्रकट हुई। अब परमेश्वर ने जो बताया उसमें नोआ के लिए बहुत काम था। ये पोत बनाना कोई आसान काम नहीं था। पता है नूह को कितने साल लगे ये पोत बनाने में? अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा हो तो पता है झूठा, कितने साल लगे बताइए, कोई जवाब दीजिए। नूह को कितने साल लगे पोत बनाने में? अगर वाकई में किसी ने पढ़ा बाइबल बराबर से जवाब दीजिए, किसी को नहीं पता। नूह को 100 साल लगे हैं पोत बनाने में। 600 साल। हाँ, 100 साल लगे हैं, 100 साल। मैं बताऊंगी कैसे, हम देखेंगे कैसे। तो परमेश्वर ने उसे कहा है कि तुम्हारा परिवार तो बच जाएगा। अब परमेश्वर ने 21 में ये कहा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वहां पर भोजन लेकर जाना, भोजन वहां पर इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, तुम्हें जमा करना है, वहां पर स्टोर करना है। तुम अपने साथ सब प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेकर जाएंगे। यानी परमेश्वर इसके बारे में जरूर, गॉड इज कंसर्न्ड दैट हाउ विल Noah survive and how not only Noah but how will the other animals and how will his family survive। तो परमेश्वर एक एक बात के बारे में ख्याल रखते हैं, वो हमारी परवाह करते हैं। हाँ, अब 22 वचन 22 नूह ने सब आज्ञाओं का पालन किया। कितना सुंदर लिखा है, just one simple word is given, Noah obeyed। नूह ने यही किया, उसने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। नाउ समथिंग वेरी, केवल एक वचन लिखा है पर समझना है। नूह ने ना कोई शिकायत की, प्रभु मैं इतना सारा काम कैसे करूंगा, ये ना कोई शिकायत, ना कोई फरियाद, ना कोई विद्रोह, ना कोई सवाल, ना कोई बहाना, कुछ नहीं, बस किया। प्रभु को ऐसे आज्ञाकारी लोग बड़े प्रिय है। तभी तो वो लोग धर्मी कहलाते हैं ना, तभी तो वो लोग, that's why they're called upright in the eyes of God। So this is something, it is written just one word, but in that one sentence there is the uprightness of Noah can be seen। He just obeyed, and you know और एक बात, नूह जब ये कर रहा है, 100 साल में बुराई बढ़ रही है, और ये बुराई जो बढ़ रही है, आसपास के लोग जब नूह ऐसी पोत को बना रहे हैं, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या कर रहा है, पागल है? नूह कह रहा है अरे समय आ रहा है। किसका समय आ रहा है? कहाँ? सब लोग अपने अश्लीलता में, अपने सांसारिक जीवन में, अपने इस दुनियादारी में, रंगीले जीवन में मस्त है। और नूह काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, किसके लिए? पोत बनाने में। यानी एक अलग ही इसलिए उसको विश्वास का भी एक पात्र कहा गया है, because he believed in the word of God। He believed that God is going to do this।
And this will happen in 100 years is not a joke. 100 years to prepare the entire ship. उस जहाज को बनाने के लिए, तो उसके लिए उसको इतना कष्ट झेलना पड़ा. अब जेनेसिस चैप्टर 7 अध्याय 7 में हम आते हैं. परमेश्वर ने, उसने नूह ने पोत बनाई और परमेश्वर ने आदेश दिया कि अब तुम अपने सारे परिवार के साथ और जोड़ों के साथ, किसके, जानवरों के जोड़ों के साथ और पशुओं के जोड़ों के साथ सब कुछ को लेकर तुम कहाँ जाओगे? तुम उस पोत में तुम प्रवेश करोगे. God said, now you shall go in that boat, what you have prepared, you shall go and you shall go with your family there. So verses 9, ईश्वर ने नूह से क्या कहा? All the birds and all the animals, they will come to you. तो यानी वो सारे आ गए. कैसे आ गए? कई बार ऐसे ये सोचने वाली बात है कि सारे जानवर, पशु जानवर अपने आप कैसे आ गए. अगर आप अध्याय 6 वचन 20 देखेंगे तो उसमें लिखा है, प्रभु ने कहा था कि ये सारे पशु जानवर तुम्हारे पास आएंगे. विभिन्न जातियों के पक्षियों, विभिन्न जातियों के पशुओं और विभिन्न जातियों की जमीन पर रेंगने वाले प्राणियों का एक जोड़ा तुम्हारे पास आएगा. तुम्हारे पास कैसे आएगा? प्रभु उनको प्रेरणा देंगे. These birds and animals, they have this inward instinct of migration. आपने देखा है कि जब जाड़े का समय आता है, कई पक्षी उड़ के कहां जाते हैं. कुछ जानवर जगह पर चले जाएंगे जहां पर थोड़ा जाड़े का, यानी जो विंटर है, इतना गहरा नहीं है. तो ऐसे प्रभु उन सबको अंदर से प्रेरणा देकर उनको, तो यानी God gave all the animals and the birds instinct that you will be going to Noah. Then in verse 10, now वो नाव में आ गए और नाव में आने के बाद बारिश शुरू हो गई और सारे जो भी all the rivers and all, everything started flooding. And it is written he had to wait. But in verse 10 it is written that he had to wait for 7. यानी अंदर जाने के बाद, पोत में जाने के बाद तुरंत बारिश नहीं शुरू हुई है. जाने के बाद 7 दिन के बाद और 7 दिन रुकना पड़ा और फिर बारिश शुरू हुई. तो जब अंदर सारे, यानी अपने परिवार के साथ जब वो गए होंगे, तो उसके मन में कहीं पर शंका तो हुई होगी क्योंकि प्रभु ने कहा अभी तुम जाओ, पर बारिश नहीं हो रही है और 7 दिन रुकना पड़ा. तो मन में कहीं आशंका हुई होगी, अरे प्रभु ने कहा पर हुआ नहीं. तो मन में एक संदेह आता होगा, पर फिर भी वो बना रहा. तो 7 दिन उसको रुकना पड़ा. That was a test of his faith that I worked for 100 years on this entire world. I made such an effort for this, ये पोत को बनाने में. अब प्रभु हमें क्यों रुका रहा है? अंदर जाने के बाद हमें क्यों रुका रहा है? पर परमेश्वर वहां पर भी उसके विश्वास की परीक्षा ले रहा है. तो Genesis 5:32, we have to note all these things. Noah was 500 years and in Genesis 7:6 Noah was 600 years. 5:32 में वो 500 साल का है और 7:6 में जब प्रभु ने कहा तुम जाओ, पोत में जाओ, वो 600 साल का है. इसका मतलब क्या हुआ? 100 साल उसको लगे हैं पोत को बनाने में. अब वर्स 12, 40 दिन और 40 रात क्या हुआ? पानी बरसा है. अब समझे 40, ये जो क्रम है ना, the numerical 40 is very important in Bible. 40 क्रम से बहुत सारी बातें जुड़ी है, क्योंकि ये 40, जब भी 40 क्रम आता है, उसकी गणना होती है, उसकी the number 40 when it comes, it is always associated with cleansing,
शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। जैसे मूसा 40 दिन 40 रात कहां पर गए? सिनाई के पर्वत पर। तो वहां पर जब गए तो प्रभु ने क्या दिए हैं? आज्ञाएं दी है। एलिया नबी 40 दिन और 40 रात चले हैं, तब जाकर वो परमेश्वर के उसको दर्शन होते हैं होरेब के पर्वत पर। प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया। क्यों? और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। तो 40 is associated with a lot of sanctification। तो ये पूरे संसार का सैंक्टिफिकेशन हो रहा है, इसलिए 40 दिन और 40 रात पानी बरसता है। आई कैन जस्ट इमेजिन, हमारे केरल में 3 दिन तूफान आया था, बाढ़ आई थी, और 3 दिन में इतना सारा 9 फीट पानी बढ़ गया था। और क्योंकि डैम्स भी खोले गए थे, तो उस समय जो जल प्रलय हुआ, उस समय तो 40 दिन 40 रात पानी बरस रहा है, और सारी नदियां, सारे झरने, सब कुछ उमड़ पड़ा है। इतना उमड़ पड़ा है कि पूरी भूमि, धरती पानी से भर गई। और ये जो पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, जो पर्वत की चोटियां हैं, सब कुछ पानी में। हम अगर यहाँ केरल में केवल 9 फीट पानी से हम घबरा गए, तो आप सोचिए पूरा, यानी जो आप जो पर्वत देख रहे हैं, हिमालय की चोटी भी नहीं दिख रही है, तो सोचिए ये धरती का क्या हुआ होगा। हालेलुया। तो अब वर्स 16, he went in as the Lord commanded। अब बहुत इंपॉर्टेंट है वर्स 16, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द वचन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए 16 लिखा है, सब शरीरधारियों के नर मादा का एक एक जोड़ा आया, ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर ने आज्ञा दी थी। इसके बाद प्रभु ने उस पर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ओ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसके बाद किसने दरवाजा बंद किया है? प्रभु ने दरवाजा बाहर से बंद किया है। ये नोआ का लॉकडाउन शुरू हुआ है। नोआ को परमेश्वर ने पोत में डालकर और उनके परिवार को रखकर अब नूह का लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो अगर प्रभु नूह के जिंदगी में लॉकडाउन ला सकते हैं, तो हमारे जिंदगी में क्यों नहीं? क्यों नहीं? और नूह का लॉकडाउन कितना समय का होगा? अभी तो हमारा तो चालू है, उसका देखिएगा कितना समय का लॉकडाउन है। हम देखेंगे कितना समय का लॉकडाउन है उसका। वो पोत में कितने, केवल 40 दिन 40 रात नहीं रहे, कितने समय रहे हम देखेंगे आज। तो वहां पर लॉकडाउन। और एक बात गौर करने की है कि परमेश्वर ने द्वार बंद किया, तो इसका मतलब क्या है? रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7, प्रकाशना ग्रंथ 3:7, प्रकाशना ग्रंथ 3:7 ये कहता है, The door that he opens, no man will shut। वो द्वार जो वो खोलता है, कोई नहीं बंद कर सकता, और वो द्वार जो वो बंद करता है, उसे कोई नहीं खोल सकता। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:7, 3:7। जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता और जिसके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता, उसका संदेश यह है। So the door that he opens, no man can shut, and the door that he closes, no man can open. So if there are some doors in your life that God has shut, don't try to open them, or don't strive to open them, or don't be unhappy that they are not opened. Be happy that God has shut them. आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जो द्वार मेरे लिए बंद होने चाहिए, बंद कर दे तू उसे। कई रिश्ते मेरे जीवन में नहीं होने चाहिए, बंद कर दे। कुछ बातें मेरे जिंदगी से बाहर निकालनी है, वो निकाल दे। God should shut it. It is good for us also.
जो द्वार मेरे लिए खुलने चाहिए वो तू खोल दे। मेरे लिए जो आशीष का द्वार होना चाहिए उसे तू खोल, और मेरे लिए जहां से बुराई मेरे जिंदगी में आती है, जहां से मेरे जीवन में अनैतिकता आती है, वो द्वार तू बंद कर दे, वो तू द्वार बंद कर दे। I tell the young people, we should pray, Lord, shut the doors that you don't want opened. And Lord, because sometimes we on our own try to keep those doors open. प्रभु अनेक बार द्वार बंद करना चाहते, पर हम हैं जो जिद्दी होकर वो द्वार को खोलना चाहते हैं। बुढ़ाऊ पुत्र ने पिता ने अपने घर का द्वार यानी द्वार बंद इसलिए किया था कि तुम बेटा मेरे पास सुरक्षित बने रहो, पर नहीं, वो पिता का वो द्वार खोलकर बाहर जाना चाहता था। आखिर में हाल क्या हुआ? सुअरों के साथ। So we should pray, God, shut the doors that you don't want opened. Okay, you should tell that. And John, very important, John chapter 10 verses 9. किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 9। यीशु कहते हैं मैं ही द्वार हूं। यीशु कहते हैं मैं द्वार हूं। आई एम द डोर, आई एम द डोर टू योर सैल्वेशन। तेरी मुक्ति का द्वार ही मैं हूं। तुम मुझ में जाओगे, मुझसे बाहर निकलोगे और तुम हरे भरे चरागाह में बने रहोगे। So our door is Jesus. And that's why Jesus says, no one can come to the Father except through me. कोई भी मुझसे हुए बगैर, इस द्वार से जाए बगैर, कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो हमें समझना है, प्रभु यीशु द्वार है, प्रभु यीशु द्वार है। अब अगर यीशु द्वार है और ये जो प्रभु ने ही इस द्वार को बंद किया, तो ये जो नाव है या ये जो पोत है, ये पोत परमेश्वर के लिए, परमेश्वर इस पोत के द्वारा क्या करना चाहता था? ये दिस इज द आर्क ऑफ सैल्वेशन। ये मुक्ति का पोत है, और ये मुक्ति का पोत नोआ के लिए मुक्ति का पोत है। दुनिया के लिए वो मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग हंस it is foolishness. इसे संभव कहते हैं, for the people of the world who do not believe in Jesus. The cross, the message of the cross is foolishness. 2 Corinthians या तो 1 Corinthians है। 1 Corinthians chapter 1 verse 18 ना, देखिए 1 Corinthians chapter 1 verse 18। Is it the same? तो 1 Corinthians है या तो 2 Corinthians है। हाँ, मैसेज बना कर 1 Corinthians 1:18। For the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. It is the power of God. इसे यानी क्रूस हमारे लिए वो पोत है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। इस पूरे दुष्ट भरे संसार से अगर हम क्रूस के साथ बने रहेंगे तो हम इस सारी दुष्टता से प्रभु हमें बचाकर प्रभु हमें कहाँ मुक्ति के मार्ग पर लेकर जाएगा। पर अगर हम इस क्रूस की अवहेलना करेंगे, हम if we deny the cross, तो समझ लेना ये हमारे लिए मूर्खता होगी। ये क्रूस की शिक्षा मूर्खता है जो नहीं समझते। So we have to understand, people of the world, they thought, what is Noah doing? Is he mad? Is he mad? He's going into this, he's making an effort to go into this ark for what? And they thought it was foolishness, but it was salvation for him and his family.
तो आपकी जिंदगी की जो परेशानियां है, आपके जीवन के जो क्रूस है, कई संसार के लोग नहीं समझेंगे और वो कहेंगे तुम पागल हो, तुम ऐसा, तुम इतना क्यों दुख झेल रहे हो, अरे तुम्हें तो मजाक करना चाहिए, क्या क्या कैसी कैसी बातें बताएंगे, तुम्हें क्या मिल रहा है इससे। वो नहीं जानते तुम्हें क्या मिल रहा है, वो नहीं जानते तुम्हें क्या मिल रहा है। ओके, तो 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Okay, and that's why Jesus, the one who believes in Jesus, will be saved. प्रभु यीशु में विश्वास करना संसार के लिए ये मूर्खता है। That's why यीशु वो चट्टान है, अगर आप उसमें विश्वास करते हो तो आप उस चट्टान में, इस कलीसिया में बन जाओगे, पर अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो यही चट्टान पर गिरकर आप, इस पर गिरकर आप लड़खड़ा जाओगे और यही आपको क्रश करेगा, यही आपको बर्बाद करेगा। That's why 1 Peter chapter 2 verses 4 to 9, देखिए बाद में पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन है, बहुत सुंदर वचन है। 1 Peter chapter 2 verses 4 to 9, it is Jesus is the cornerstone, वो कोने का पत्थर है। The one who believes will be built upon that stone, but the one who rejects it, it will be the stumbling block on which they will fall. 1 Peter chapter 2 verses 4 to 9, verses 4 to 9, वो पूरा वचन ऐसे इसी पर है। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी गई है वो अक्षय, ओके, आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ आपको मुक्ति में, आगे पढ़िए, आगे निकलिए और आगे 1 Peter chapter 2 verses 4 to 9, हाँ ओके ओके, ये इससे होता है कि आपका विश्वास परिश्रमिक, इन इंग्लिश इट इज वेरी वेरी रिटन, एनीवेज वो जाने दीजिए, बाद में आप पढ़िएगा। ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो जल प्रलय हुआ है ये कोई लोकल जल प्रलय नहीं है, एक जैसे केरल का जल प्रलय हुआ था वैसा नहीं है, ये पूरे संसार का जल प्रलय है। इट इज ग्लोबल, ग्लोबल फ्लड है, ग्लोबल, जैसे ग्लोबल पैंडेमिक है ना, ये ग्लोबल फ्लड है, तो जैसे केरल में हुआ वैसा टाइप का नहीं है, इट इज अ ग्लोबल डेल्यूज। और वचन 24 में लिखा है ये पानी 40 दिन 40 रात गिरता रहा, फिर कितने दिन बढ़ता रहा 150 दिन, कितने दिन 150 दिन, यानी कितने महीने हुए, कितने महीने हुए 5 महीने, 5 महीने तक अंदर, एक तो 40 दिन 40 रात पहले पानी गिरा है, उसके बाद 5 महीने और पानी बढ़ता रहा, और फिर आते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 में, निकालिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 निकालिए, उसमें लिखा है, पहला वचन ये है, प्रभु ने नोआ को याद किया, प्रभु ने नूह को याद किया है और सारे पशु जानवरों को याद किया है। इसका मतलब ये है कि प्रभु ये 6 महीने भूल गए उनको, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनको भूल गए, परमेश्वर उनको भूले नहीं है, प्रभु उनको संभाल रहा था, 6 महीने उनको संभाल रहे थे, पर अब 6 महीने के बाद परमेश्वर यानी he's taking an active, सक्रिय तौर से अब कोई कार्य करने वाला है, क्या करने वाला है। एंड ये जब लिखा है, परंतु ईश्वर ने नूह और उसके साथ पोत के सब जंगली जानवरों को और सब पशुओं पर उनका ध्यान रहा, तो जब when it says ध्यान रहा, यानी अब प्रभु उनके बारे में सोच रहे, यानी ये भी क्यों सोच रहे, एक पिता, ये ईश्वर क्यों सोच रहा है, क्योंकि उसके अंदर उनके प्रति प्यार है, दया है, करुणा है, इसलिए प्रभु उनके बारे में सोच रहे, प्रभु उनको भूल नहीं गए। So it is an expression of God's love and concern for His creation, for Noah and all the animals. Now, आपको लगेगा कि ये केरल का बाढ़ जो आया, केरल में जो भी जल प्रलय आया, उसको भी सुखाने के लिए कितने दिन लगेगा, इस पूरे संसार का जल प्रलय पानी कैसे सुखाया जाएगा, कितनी बड़ी समस्या लगती है हमको ये, है ना, so big, how will this entire world, how will the water recede, how? But we have to understand, no problem is too big for God. If God can create the entire earth and the waters and the heavens and everything just by His word, what is there for Him to recede the water? परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं। और एक बात है कि प्रभु ने 40 दिन पानी पहले शुरू किया,
फिर पानी बंद गया, which means God is in control. परमेश्वर अधिकार में है. Okay. So God knows how to make the waters recede. तो उसने क्या किया है, उन्होंने हवा भेजी है, और वो हवा भी पवित्र आत्मा की ही हवा है. उस हवा के वो हवा आने पर हम देखते हैं जो 7:11 में शुरू हुआ है, उत्पत्ति 7:11 में जो पानी शुरू हुआ है, अब प्रभु ने उस पर अधिकार लेकर उत्पत्ति 8:4 में लिखा है, 7th day of the 7th month the ark came to rest on the mountains of Ararat. एक पर्वत की श्रृंखला पर एक ये अब जो पोत है वो वहां पर रुक जाती है, क्योंकि अब हवा बहने से पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और the waters receded, and so this ark could be installed, like it stopped there. It was in 8:4, yes, 8:4, और सातवें महीने और उस महीने के 17वें दिन पोत अरारत की पर्वत श्रेणी पर जा लगा. Okay, so in verses 5, water receded 10वें till the 10th month, 10वें महीने तक पानी घटता चला गया, और 10वें महीने, उस महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियां दिखने लगी. यानी अब कितने महीने, 40 दिन, और अब 10 महीने अंदर है, 10 महीने लॉकडाउन जारी है. हमने भी सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ, अभी तक लॉकडाउन जारी है. हाँ, यहाँ पर इसका नूह का भी लॉकडाउन जारी है, और वो भी अंदर पोत के अंदर है, बाहर बारिश पे बारिश आ रहा है. अब ये धीरे धीरे जब पानी कम होता गया, फिर उन्होंने कौवे को छोड़ा है. तो कौवे को जो छोड़ा, तो कौवा वो बाहर जाता रहा, पर कहीं पर उसको जगह नहीं मिली, फिर वापस आता जाता रहा, और वो एक समय में कौवा वहीं पर ऐसे आता जाता रहा, और फिर वो चला गया. कारण ये है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ खाने को जंगली वो जानवर सब मिले होंगे. पर फिर उसके बाद प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने किसको भेजा है, एक कपोत को भेजा. और कपोत भी हम जानते हैं कि वो उड़ के वो वापस आया, उसे कहीं पर भी ठहरने की जगह नहीं मिली. आखिर में वो वापस आता है, तब वो अपने मुंह में एक डाली लेकर आता है. एक डाली लेकर आता है. इससे ये पता चल गया कि वाकई में water had dried up, and Noah removed the covering. So how many days did Noah stay there? Genesis chapter 7 verses 11 and 12. Genesis 7, 11 and 12, it is written, on the 17th day of the second month of the 600 years of Noah. आवाज बंद कीजिए, किसी की आवाज. Alicia Alexander, okay. 17th day of the second month of the 600th year of Noah. ये नोआ के जब वो 600 साल का था, उसके दूसरे महीने में 17वें दिन पर नोआ कहां पर गया, पोत में गया. अब वो वापस बाहर कब आ रहा है, 601 साल का, यानी in the 601st year of the 27th day of the second month, यानी 1 साल 10 दिन वो पोत में रहा. लॉकडाउन कितने समय का रहा, 1 साल 10 दिन वो अंदर रहा. तो अब वो जब वो बाहर आता है, प्रभु ने खुद कहा अभी तुम बाहर आओ, और बाहर आने के बाद सारे पशु जानवर भी आते हैं और सब जगह फैल जाते हैं. और जैसे ही वो बाहर आते हैं, जैसे ही, ये गौर करने वाली अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो जैसे ही इस पोत से बाहर आते हैं, सबसे पहले नूह ने क्या किया है, सबसे पहले नूह ने एक बेदी को बनाया है. क्या बनाया उसने, बेदी फर्स्ट है. और बाइबल में सबसे पहले अगर बेदी शब्द का प्रयोग होता है तो यहां पर होता है. यानी नूह वाकई में एक धार्मिक व्यक्ति है, क्योंकि इस पूरे किस्से के बाद उसे सबसे पहले याद किसकी आ रही है, प्रभु की याद आ रही है. और प्रभु को वेदी पर क्या चढ़ा रहा है, वो
एक ऑल्टर बनाकर, वो वेदी बनाकर वहां पर प्रभु की आराधना कर रहा है। यानी उसका दिल प्रभु पे लगा हुआ है और वो धन्यवाद दे रहा है कि प्रभु तूने मेरी रक्षा की, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहा है। तो ये अपने आप प्रभु ने उसे नहीं कहा, बल्कि उसने खुद अपने आप बलि चढ़ाई है। और ये बलि किस बारे में, कि वो कृतज्ञता प्रकट कर रहा है कि प्रभु तूने मेरी रक्षा की, और स्व इच्छा से वो ये बलि चढ़ा रहा है। अब आपको लगेगा कि उसने वहां पर कई जानवरों को मारा है, तो वो जब जानवरों से मारे उसके पास तो बहुत ही कम, यानी कम संख्या में जानवर थे, क्योंकि उसे दो संख्या में ही सबको लेकर गए थे, पर फिर भी उसने बलि चढ़ाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको it cost him, the sacrifice cost him. Let you know, my dear and sisters, unless a sacrifice that we offer to God, unless it costs us, जब तक आपको उसका कोई मूल्य ना चुकाना पड़े, वो सैक्रिफाइस नहीं माना जाता। तो परमेश्वर को जहां पर हमें कुछ मूल्य चुकाना पड़े, तो वो प्रभु के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए वो औरत जिसने 2 अधेले दिए थे, जिसने, वो एक औरत है ना जिसने मंदिर के दान पेटी में 2 अधेले डाले, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व डाल दिया था। उसने बहुत, it meant a lot for it, बहुत खर्च उसके लिए बहुत मायने रखता था। इससे प्रभु की दृष्टि में ये सैक्रिफाइस, ये बलिदान बहुत बड़ा हो गया। जिसके पास बहुत कुछ था उसमें से उसने कुछ दिया, ये उसके लिए बहुत खर्चा नहीं हुआ था। तो God wants and that sacrifice, आप जब एक ऐसा बलिदान चढ़ाओगे, जब आपको कुछ उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, आपको कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, तो समझ लीजिए परमेश्वर उससे बहुत तृप्त होते। इसी तो लिखा है, प्रभु को ये बलिदान की जो महक थी बहुत प्रिय लगी। God was pleased with the aroma of the sacrifice। क्या प्रभु को वो भेड़ बकरियां का जो, यानी वो जो बलि चढ़ा रहे, वो उसका सुगंध पसंद आया? नहीं। उनको नूह के अंदर जो धार्मिकता थी, नूह के अंदर जो उसका जो मानसिकता थी, उसके प्रभु के प्रति जो प्यार था, जो प्रकट किया उसने अपने इस बलिदान के द्वारा, ये प्रभु को प्रिय लगा। तो लिखा है इसे रोमियो का पत्र अध्याय 12 वचन 1 में लिखा है, तुम अपने शरीर को एक सुग्राह्य बलि के रूप में चढ़ाओ। जब शरीर में इच्छा नहीं हो रही है, सवेरे उठकर प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हो रही है, नींद आ रही है, पर फिर भी आप सवेरे उठकर प्रार्थना करते हो, प्रभु की स्तुति करते हो, तो वो बलि है, वो बलि है, प्रभु को वो प्रिय है। जब आप अपने आप को थोड़ा कष्ट देकर प्रभु के लिए कुछ करते हो, वो बलि है। फिर इब्रानियों का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 15 भी कहता है, देखिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वचन है। इब्रानी का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 15 कहता है, ऑफर अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज टू गॉड, ऑफर अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज टू गॉड, यानी प्रभु को एक स्तुति का बलिदान चढ़ाना है। स्तुति का बलिदान, हमारे होठों का फल जो है वो स्तुति का बलिदान, ये प्रभु को अत्यंत प्रिय है। इब्रानी का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 15, हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। यानी आपकी जबान निरंतर जब यीशु नाम पुकारते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, तो ये क्या होगा, आपकी स्तुति का, आपके होठों का फल और वो स्तुति का बलिदान होगा। ये प्रभु को अत्यंत प्रिय है। अगर आप सैमुएल नबी का ग्रंथ लेते हैं अध्याय 2, सैमुएल नबी का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 वचन 24, सैमुएल नबी का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 वचन 24, उसमें लिखा है, दाऊद भी जब प्रभु के वेदी के सामने कुछ बलिदान चढ़ाना चाहते थे, तो उन्हीं के राष्ट्र के एक निवासी, उन्होंने कहा, राजा दाऊद, मैं सब कुछ आपको मुफ्त में देने को तैयार हूँ बलि के लिए। तब राजा दाऊद क्या कहते हैं, नहीं, मैं रुपया देकर ये वस्तुएं तुमसे मोल लूंगा, बगैर कुछ खरीदे, यानी बगैर, मैं मुफ्त में कुछ में होम बलियां नहीं चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु अपने ईश्वर को मुफ्त में प्राप्त होम बलियां नहीं चढ़ाना चाहता हूँ। मुफ्त में हमें कुछ मिला, मुफ्त में, यानी आपको कष्ट नहीं हुआ, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो दाऊद ने भी अपने ही प्रजा से जो भी होम बलियां चढ़ाइए, पैसा देकर, चुकाकर, यानी कुछ कीमत चुकाइए। फिर
अब परमेश्वर कह रहा है कि, और इस बलि के कारण परमेश्वर इतना तृप्त हुआ, इतना उनका दिल इतना भाग गया कि उन्होंने कहा, अपनी दया से प्रेरित होकर कहते हैं कि भले ही मनुष्य का पाप कितना भी बढ़े, पर अब मैं ये जल प्रलय जैसा हुआ अब मैं नहीं करूंगा। प्रभु ने अब एक विधान, ही एस्टैब्लिश्ड अ कवेनेंट, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, और उसके बाद प्रभु सारे सीजन ही एस्टैब्लिशेस मौसम को स्थापित करता है। अब हम आगे जाएंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9, बहुत कुछ इसमें, ये एक अध्याय को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में, क्योंकि इसमें कुछ 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, प्रभु एक he is establishing a covenant with Noah and the entire creation, and he is giving some instructions, कुछ निर्देश दे रहे हैं नोआ को। तो अध्याय 9 वचन 1 से 4 में प्रभु निर्देश दे रहे। क्या निर्देश दे रहे? तो निर्देश में प्रभु ने जो बात आदम से कही थी, सबसे, यानी गौर करने वाली बात है, ये प्रभु ने आदम की रचना उत्पत्ति 1:28 में 1:27 में करने के बाद सबसे पहली बात प्रभु ने आदम को की, कहा फूलो फलो फैल जाओ, पृथ्वी पर फैल जाओ। यही बात प्रभु वापस इनको कह रहे, नूह को कह रहे। क्या कह रहे? कि तुम भी फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। आगे अध्याय 2 में वचन 2 में लिखा है, पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु, समुद्र के सभी मछलियां, इन सब पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। हाँ, इसका मतलब क्या है? अब तक पशु जानवरों को मनुष्य का भय नहीं था, मनुष्य का उन पर अधिकार है, पर उनको मनुष्य का भय नहीं था। क्यों अब ये भय होना क्यों जरूरी था? क्योंकि अब तक प्रभु ने मनुष्य को केवल वृक्ष के जो फल थे या जो हरी भरी पत्तियां थी, झाड़ झाड़ियां थी, वही भोजन के लिए दिया जा रहा था। पर अब प्रभु ये खेत में विचरने वाले प्राणी भी भोजन के रूप में दे रहे। तो प्राणी अपनी रक्षा करने के लिए अब उनको भय दे रहे कि वो स्वरक्षा करेंगे, पर मनुष्य को उन पर फिर भी अधिकार दिया जा रहा है। तो हमें समझना है कि ये प्राणियों में जो भय है ना, इस कारण से ही हम उन पर अधिकार ले पा रहे। नहीं तो सोचिए ना, एक घोड़ा या एक हाथी या बैल जो मनुष्य की तुलना में कितना शक्तिशाली है, हम मनुष्य बैल की तुलना में कैसे आ सकते हैं? तो फिर भी बैल से हम काम करवाते, घोड़े पर सवार होकर हम उसको चाबुक भी मार देते हैं। क्यों है पता है? क्योंकि इनके अंदर मनुष्यों का भय है। नहीं तो ये जानवर हमसे बहुत शक्तिशाली है, हम तो कितने कमजोर है उनकी तुलना में। वो 1 लाख हमको मारेंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हालेलुया। ओके, तो प्रभु ने कहा कि तुम उनको भोजन दो। अब यहाँ पर परमेश्वर कुछ कह रहे, तुम उनका मांस खाओगे, पर रक्त के साथ उनका मांस नहीं खाओगे। प्रभु बार बार ये रक्त जो शब्द है ना, ब्लड is very important for God. It is very important. Why it is very important? Because blood represents life. मनुष्य के अंदर खून नहीं है तो जिंदगी नहीं, खून जीवन है। एंड जीवन प्रभु से मिलता है, जीवन प्रभु से मिलता है, वो चाहे जानवरों का जीवन हो या मनुष्य का जीवन। इसलिए वो जीवन की चाहते कि हम जीवन का आदर करें। इस कारण से प्रभु ने कहा किंतु तुम वह मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया, यानी वो मांस जिसमें रक्त है वो नहीं खाना। तो परमेश्वर कहता है कि अगर रक्त बहाया जाएगा और रक्त के द्वारा खाओगे तो उसका मैं बदला चुकाऊंगा। अब यहाँ पर मनुष्यों के जीवन की बहुत कीमत की गई है। प्रभु कह रहा है, प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि अगर मनुष्य का खून होता है तो उसका जवाब या उसका हिसाब मैं लूंगा। So because life comes from God, God wants man to be accountable for life. Very important, very, very important. So God gives man responsibility
that you will be accountable. तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, किसको? मुझे, क्योंकि जीवन मुझसे आता है। तो जब इंसान दूसरे इंसान का खून बहाता है तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि हत्या ये शैतान का स्वभाव है। हत्या ये शैतान का स्वभाव है। एक और बात कहनी जरूरी है कि there is a difference between killing and murder. किसी ने गलती की और गवर्नमेंट, सरकार ने सुनाया कि इसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, तो वो भी तो मौत है, पर वो अधिकार प्रभु ने दिया है। आप अपनी रक्षा करने का, अपनी स्वरक्षा करने के लिए किसी का खून करते हैं, means you are killing someone. Killing and murder is different. Murder is you have done it because of your selfish desire, but killing is an act of protection. एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ लड़ रहा है तो सिपाही मार रहे हैं दूसरे के लोगों को, दूसरे राष्ट्र के लोगों को, वो that is allowed. वहां पर जवाब नहीं देना है, पर जवाब कब देना होगा? जब आपने अपने स्वार्थ के कारण किसी की हत्या की। समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ so we come to 9. Okay. अब परमेश्वर, दूसरा पाठ, ये अध्याय 9 का दूसरा पाठ है। परमेश्वर 8 से 11 वचन। परमेश्वर इंसान के साथ एक रिश्ता जोड़ता है एक विधान के रूप में। It will be a covenant. It's a covenant कि ये विधान प्रभु ठहराता है। और what is the promise? प्रभु ने क्या कहा? अब मैं कभी भी, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे, और प्रभु ये विधान केवल इंसानों के साथ नहीं बल्कि पूरे यानी समस्त सृष्टि के साथ, जीव जंतु के साथ भी। यहाँ पर एक और बात है, मछलियां, यहाँ पर ये जल प्रलय में मछलियां नष्ट नहीं हुई थी, केवल पशु जानवर और पक्षी वो नष्ट हो गए थे। तो यहाँ पर जो भी चौपाए हैं, जंगली जानवर हैं और ये सारे पक्षी, उनके साथ प्रभु एक क्या विधान ठहराते हैं कि अब प्रभु उनको कभी नष्ट नहीं करेगा। इस तरीके से जल प्रलय देकर नहीं, मैं तुम्हारे लिए विधान ठहराता हूँ कि कोई भी प्राणी जल प्रलय में से फिर नष्ट नहीं होगा और फिर कभी भी, आगे बढ़िए, कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगी। सो गॉड मेड अ कवेनेंट, a flood or a deluge. Okay, तो प्रभु ने ये कहा है। पर एक और बात, ये प्रभु ने कहा और प्रभु इसके प्रति ईमानदार भी है, पर ऐसा एक प्रलय यानी संसार नष्ट होगा कब? जब नूह के जमाने में जो पाप जैसा बढ़ा था वैसा ही पाप जब संसार में आएगा तब वापस नष्ट होगा, तब यीशु का आगमन होगा। तो यीशु ये बारे में बताते हैं कहां पर? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 37। Matthew chapter 24 verses 37. When a similar situation arises as in the time of Noah, Jesus said there will be destruction. जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। सो जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, पाप इस संसार पर पूर्ण रूप से हावी हो जाएगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, तब जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसके सबको बहा नहीं दिया तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय भी वैसा ही होगा। इसलिए आज जो कलीसिया में जो वचन दिए जा रहे वो इसी है, ये अलर्ट, अवेक, जागते रहो, तैयार हो जाओ, मानव पुत्र कब आएगा, पता नहीं, कब नहीं पता। तो ये, और अब जो
मानव पुत्र आएगा तब संसार नष्ट कैसे होगा? तब संसार नष्ट कैसे होगा? जल से नहीं, आग से नष्ट होगा। ये कहां पर आता है? सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 7। वो आप बाद में पढ़िएगा, समय नहीं है मेरे पास अभी, बाद में पढ़िएगा। सेकंड पीटर, प्लीज लेटर रिफर टू इट। वहां पर जल प्रलय के बारे में बताया है और यीशु के आने के समय का, आगमन काल में के समय में क्या होगा वो पूरा बताया गया है। सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 7। ओके, अब साइन ऑफ द कवेनेंट, व्हाट इज द थर्ड, जो अभी आगे बढ़ेंगे, ये विधान का चिन्ह क्या है कि प्रभु ने चिन्ह के रूप में किसको बताया है? इंद्रधनुष। कि आकाश में जब एक इंद्रधनुष यानी वो धरती और आकाश के बीच में होगा, यानी ये एक चिन्ह होगा। क्या दिस इज द चिन्ह के पीढ़ियों तक ये चिन्ह क्या होगा कि जब जब ये इंद्रधनुष आकाश में देखेगा, मुझे याद आएगा कि मैंने अपनी ही जनता के साथ, अपनी प्रजा के साथ ये विधान ठहराया है कि मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। अब आपको लगेगा इंद्रधनुष तो रोज नहीं आता है ना, रोज तो बारिश होता नहीं है, तो रोज तो इंद्रधनुष दिखता नहीं है, तो प्रभु कभी कभार ही याद करेंगे? नहीं, बहुत सुंदर बात है। मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मुझे भी आया कि कितना परमेश्वर, कितना हमारा ख्याल रखता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वचन 3, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वचन 3, इसमें लिखा है, सिंहासन के अगल बगल में, सिंहासन के आसपास इंद्रधनुष है। कौन से सिंहासन? पवित्र सिंहासन के पास, प्रभु के सिंहासन के पास प्रभु ने इंद्रधनुष को रखा है, जिसका रूप रंग सूर्यकांत और रुधिराक्ष के सदृश है, और सिंहासन की चारों ओर मरकत मणि जैसा एक आधा मंडल है। Oh, it is not written in English. It is written there is a rainbow. In English it is written, if you can put up English. Okay, it is written English का हम पढ़ेंगे। Revelation chapter 4 verses 3, very beautiful. Which means that every time God is constantly reminded that I have made a covenant, and that's why आज तक पाप इतना बढ़ रहा है। नहीं तो कब तक यहाँ पर और एक जल प्रलय आ गया होता, कब तक आ गया होता, इतना पाप बढ़ रहा है इस तरीके से। And the one seated there looks like jasper and carnelian, and around the throne is a rainbow that looks like an emerald. English में लिखा है, around the throne is a rainbow. Yes, very very important. Okay, so that shows that God is so faithful. God is faithful to His covenant, and He remembers us that He is not going to destroy us. Now the last part, we're going to come to the last part. The last part is Noah and his sons. बहुत ध्यान रख, ये अहम, ये बहुत ही नूह और उसके पुत्र। तो 20 से 23 में ये वचन आया है कि नोआ के 3 पुत्र थे, और ये तीनों पुत्र पूरे सारे संसार में फैल गए, उसी के द्वारा संसार की जातियां बढ़ रही है। अब लिखा है नूह एक किसान था, और किसान होने के नाते उसने खेती-बाड़ी की है, और खेती-बाड़ी में उसने एक दाख-बारी भी लगवाई है, और दाख-बारी लगाने के बाद उसी दाख-बारी से उसने अंगूरी पी है। अब यहाँ पर एक बहुत दुखद बात है। परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति, जो इतना धार्मिक था, वो प्रभु के धर्म के मार्ग से वो भी विचलित हो गया। और क्यों विचलित हुआ? क्योंकि उसने नशा पान किया है। तो यहाँ पर बाइबल में पहली बार नशा पान का, यानी अंगूरी रस का यहाँ पर उल्लेख आता है। तो अंगूरी आगे चलकर हम बताएंगे कि सुक्ति ग्रंथ में कितने सारे बात में लिखा है कि अंगूरी पीने से हम मतवाले बनने से क्या क्या होता है। तो वो मतवाला बना, और मतवाला बनकर वो नग्न अवस्था में, अंगूरी पीने के बाद वो नशे में आकर उसने अपने तंबू में नग्न होकर पड़ा रहा, यानी वो सुध-बुध खो बैठा, उससे वो होश-हवास में नहीं था। एंड वो ऐसे ही जब वो पड़ा रहा, तब लिखा है कनान के पिता हाम ने, कनान उसका दूसरा बेटा है, मजला बेटा है, कनान ने हाम उसका दूसरा बेटा है। वो किसका पिता है? वो कनान का पिता है। एक्चुअली हाम के 3 बेटे हैं, और 3 बेटों में बार बार कनान का नाम आता है, हम बताएंगे क्यों। तो हाम ने अपने पिता को नंगा देखा,
तो उसने बाहर आकर अपने 2 भाइयों को ये बात बताई। और हम जानते हैं, आगे पढ़कर हम देखते हैं कि सेम और याकेत ने एक वस्त्र लेकर अपने कंधों पर रखा और वे पीठ की ओर ले चलकर भीतर गए। फिर वस्त्र डालकर उन्होंने अपने पिता के नग्न शरीर को ढक दिया। उन्होंने अपने मुंह फेर लिया, जिससे वह पिता के नंगे शरीर को न देखे। अब समझ लीजिए, मझला बेटा आया है, पिता की नग्नता देखी है, नग्नता को देखकर उसने भाइयों को बतलाया है। दोनों बड़े भाई, ज्येष्ठ भाई और सबसे छोटे भाई ने, यानी ये दोनों बेटों ने वस्त्र लेकर पिता की नग्नता को नहीं देखा, बल्कि उसको ढांक दिया। और जब नूह होशोवास में आए, जब उनको पता चला और जब वो जागे, तो उसने अपने मझले बेटे को श्राप दिया है और बड़े बेटे और छोटे बेटे को आशीष दिया है। आपको अजीब लगेगा, कितने लोगों को अजीब लगा था जब ये पढ़ रहे थे? लगा था या नहीं लगा था? हाँ, कि ये क्या है, ये कैसा न्याय है, ये क्या न्याय है? हाँ, अजीब लगेगा, पर इसके पीछे कुछ समझने वाली बात है, कुछ एक आध्यात्मिक संदेश है। हाम जो कनान का पिता था, उसको क्यों श्राप दिया गया है? क्योंकि केवल नग्नता देखकर ही, जरूर नग्नता को देखी, पर ऐसा कहा जाता है, धर्मशास्त्री कहते हैं कि उसने अपने पिता की नग्नता को देखकर उसका मजाक उड़ाया। पापा की कमजोरी का मजाक उड़ाया है, हंसे हैं वो अपने भाइयों के सामने, जिस कारण से उस पर श्राप आया। माँ बाप की कमजोरी, माँ बाप कमजोर हो सकते हैं, पर माँ बाप की कमजोरी का अगर आप मजाक उड़ाओगे, उनकी बुराई को खोलोगे, ढांकोगे नहीं, तो आप पर जरूर श्राप आएगा, यानी आपको उसका बोझ आएगा, ये पाप माना जाएगा। अपने माता पिता को जो उस पर हंसी उड़ाता है, तो सिटीजन में लिखा है, तो उस पर उसको दंड दिया जाता है। अब आपको लगेगा क्यों? और लिखा है कनान को, और कनान के बारे में लिखा है। पाप किसने किया है? हाम ने किया, और हाम का बेटा कनान है। तो कई धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं, शायद हाम जब पिता के पास गए तो हाम को भी साथ में लेकर गए थे, ऐसा कहा जाता है। और कहीं धर्मशास्त्री ऐसा भी कहते हैं कि हाम को 3 बेटों में सबसे ज्यादा प्यार कनान से था। तो आपको जिससे ज्यादा प्यार होगा ना, आपको उसी के द्वारा दर्द भी होगा। तो उसको दर्द देने के लिए इसी जब भी हाम की बात आती है, तो यही कह संबोधित किया जा रहा है, कनान का पिता हाम, कनान का पिता हाम। हाम के और भी 2 बच्चे हैं, पर उन दोनों का नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि हाम को देखिए, अगर आगे चलकर भी अगर आप याकूब का किस्सा लेंगे, याकूब को सबसे ज्यादा प्यार किससे था? यूसुफ से। उसको सबसे ज्यादा आप जिसको ज्यादा प्यार उसको बढ़ा चढ़ा कर उसको यानी फैलाना नहीं है, बल्कि आप अपनी प्रार्थना की चद्दर के द्वारा आप उसको ढांक देना है। तो कभी ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा दायित्व बनता है। हम अगर हम एक और बात है, नूह ने भी एक बहुत बुरा उदाहरण दिया है, क्योंकि हमारे बीच में हमारा जब यहाँ पर रिट्रीट हुआ था, तो वहां पर एक फादर ने नूह के किस्से को लेकर कहा कि धार्मिक व्यक्ति कैसे अधर्म के मार्ग पर जा सकता है, उसका नूह एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। तो हमें
बहुत उसे नूह का ये किस्सा क्यों बताया गया, हमें सावधान होना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 100 साल प्रभु के साथ चला है, जो इतना जल प्रलय में प्रभु ने उसको मुक्ति दिलाई उसके परिवार को, वो भी गिर सकता है। इसे कितना हमें ध्यान देना है। और हमें आगे चलकर एफएससी के पत्र में संत पौलुस ने कहा 5:18 में कि तुम ये नशे से, अंगूरी से मतवाले मत बनो, बल्कि आत्मा से मतवाले बनो। यानी वाकई में हमें मतवाला किससे बनना है? हमें मतवाला पवित्र आत्मा से बनना है। हालेलुया। आगे चलकर अध्याय 10 जो है वो तो सारा वंशावली है, तो हम यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। हमारा 5 से 10 हो गया, आज वाकई में हुआ है। तो अगली बार हम थोड़ा अभी तेज रफ्तार पर तो जाना है, यानी तेज नहीं करना है ऑफ कोर्स, मुझे मेरे अनुसार ये काफी अच्छा सही था, ताकि धीरे धीरे हम थोड़ा समझे भी और यानी आगे भी बढ़ सके। तो हम अगली बार 11 से 11, 12, 13, 14, ओके, हम 11 से 15 लेंगे। ओके, चलो 5 अध्याय करते हैं अभी। 5 अध्याय पर ये 11 से 15 में बहुत सारी बातें हैं, प्लीज बहुत सारी बातें, क्योंकि इब्राहिम अध्याय 11 में तो बाबुल का किस्सा आता है, 12 से इब्राहिम का किस्सा आना शुरू हो जाएगा, और काफी सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें सीख। और प्लीज उसको रोज थोड़ा पढ़िएगा, रोज पढ़िए, ताकि आपको भी उसमें से प्रभु पवित्र आत्मा आपको बात करना शुरू करे। और एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको गहराई में पढ़िए, वापस पढ़िए तो, और समझिए क्यों ऐसा लिखा है, प्रभु क्या कहना चाहता है हमसे, हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। प्रार्थना करके प्रभु पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। और हम भी फिर अगले मंगलवार तक 11 से 15 अध्याय तक हम अहम बातों पर हम थोड़ा मनन करेंगे, अहम बातों पर, क्योंकि सारी बातों पर मनन करना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, पर हम अहम बातों पर मनन करेंगे जो हमें वाकई में हमें ग्रहण करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और वचनों को जो आपने हमको दिए हैं। प्रभु वचनों का जो मर्म समझा है, प्रभु आपने अपनी दया, हमारे पापों के बावजूद आप हमें जो अपनी दया दिखाते रहते हैं, हमें बचाते हैं, हमारा संरक्षण करते हैं। और सबसे अधिक प्रभु आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह, उसके महान बलिदान जिसके द्वारा, इसकी योग्यता के द्वारा प्रभु हम नया जीवन पाते हैं और स्वर्ग की आशा कर सकते हैं, अनंत जीवन की जो हम आशा करते हैं, उसके लिए प्रभु सबके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और सभी भक्तगणों के, ये जो भी विश्वासी गण हैं, उनकी जरूरतों को, उनकी परेशानियों को भी तेरी ओर चढ़ाते हैं। प्रभु आप अपनी कृपा में उनकी हर जरूरत, उनकी प्रार्थना, उनके निवेदन को स्वीकारिए और उन्हें आशीष प्रदान कीजिए। हम अपने आप को क्रूस के चिन्ह से अंकित करेंगे, क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। We will leave the meeting.